تو کہانی وہی سے کنٹینیو ہے جہاں کلوئی اور لوسیفر نے آخرکار پروفیسر کا راز پاش کر دیا، مگر اینڈ میں پروفیسر نے خود کو ہی مار ڈالا۔ کیس تو سالو ہوا، لوسیفر اور کلوئی بھی ایک دوسرے کے کافی قریب آئے۔ اس بات سے لوسیفر بہت خوش تھا، مگر اینڈ میں جب اسے پتا چلتا ہے کہ کلوئی اصل میں گاڈ کے پلان کا حصہ ہے تو اسے بہت غصہ آتا ہے اور وہ خود کو بس ایک کٹ پتلی سمجھتا ہے، کیونکہ کلوئی کے ساتھ رہنا اتفاق نہیں تھا۔ اینڈ میں ہم نے دیکھا تھا وہ غصے میں کلوئی کے گھر جاتا ہے اسے پوچھنے، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ بتا پاتی لوسیفر کو پتا چل جاتا ہے کہ اس کی بلیڈنگ ہو رہی ہے۔ صاف مطلب یہی تھا کہ اسے بھی زہر دیا گیا تھا۔ اب لوسیفر اسے کار میں بٹھا کر ہاسپٹل لے جانے والا تھا، مگر کلوئی اسے سمجھاتی ہے کہ ہاسپٹل جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس زہر کا اینٹیڈوٹ صرف پروفیسر کے پاس تھا اور اب وہ نہیں رہے۔ لوسیفر یہاں کلوئی کی بات مان لیتا ہے اور ہاسپٹل کے بجائے وہ اپنی طرف سے کچھ کرنا چاہتا تھا۔ ویسے پروفیسر نے اسے انجیکشن تب دیا تھا جب کلوئی اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ خیر، اب لوسیفر اور کلوئی پولیس اسٹیشن جاتے ہیں جہاں وہ ایلا کو بلاتے ہیں، مگر وہ اسے سچ نہیں بتاتے۔ دوسری بات کہ انہیں پروفیسر کے لیب سے جو کچھ بھی ملا تھا اس میں وہ ڈھونڈنا چاہتے تھے کہ شاید کوئی اینٹیڈوٹ مل جائے، مگر افسوس وہاں انہیں کچھ نہیں ملتا اور وہ ایلا سے بھی یہ بات چھپاتے ہیں۔ اتنے میں لوسیفر کا دھیان امینڈیل پر جاتا ہے، وہ وہاں آیا تھا تو لوسیفر اس سے بات کرنے جاتا ہے اور اس پر کافی غصہ کرتا ہے کیونکہ امینڈیل سچائی جانتا تھا کلوئی کے بارے میں، مگر اس نے لوسیفر کو نہیں بتایا۔ دوسری بات یہ کہ اب خود امینڈیل بھی کافی سیٹ تھا، اسے لگتا ہے گاڈ بس ان سبھی کا استعمال کر رہا ہے اور اب تو کلوئی کو زہر بھی دیا گیا تو لوسیفر کو لگتا ہے کہ شاید یہ بھی گاڈ کے پلان کا حصہ ہے، مگر امینڈیل کے پاس اس کا کوئی حل نہیں تھا۔ دوسری طرف کلوئی کو ایک آدمی کا خیال آتا ہے جو اصل میں یہ زہر سپلائی کرتا تھا اور پریویس ایپیسوڈ میں ہمیں وہ دکھایا بھی گیا تھا، تو ہو سکتا ہے اس کے پاس اینٹیڈوٹ مل جائے۔ اصل میں وہ بیل پر چھوٹا تھا اور وہ اپنے گھر میں پارٹی دے رہا تھا۔ کلوئی اور لوسیفر وہاں جاتے ہیں، کسی طرح کلوئی اسے ایک روم میں لے آتی ہے اور وہاں لوسیفر پہلے سے ہی بیٹھا تھا۔ اس سے پہلے بھی لوسیفر نے اس آدمی کو اپنا اصلی چہرہ دکھایا تھا، مطلب ڈیول والا، جس سے وہ کافی ڈر گیا تھا اور اب اینٹیڈوٹ کے لیے لوسیفر پھر سے ایسا کرتا ہے۔ وہ آدمی سچ سچ بتا دیتا ہے مگر اس کے پاس کوئی اینٹیڈوٹ نہیں تھا، وہ بس سپلائز کیا کرتا تھا۔ اس آدمی سے پوچھ تاچھ کرنے کے بعد وہ دونوں واپس آ ہی رہے تھے مگر کلوئی کو کچھ ہو جاتا ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اب مجبوراً لوسیفر کو اسے ہاسپٹل لانا پڑتا ہے، ساتھ ہی سبھی لوگوں کو پتہ بھی چل جاتا ہے کہ کلوئی کو زہر دیا گیا ہے۔ خاص کر اب ڈین بھی ٹینشن میں پڑ جاتا ہے۔ اب ان کے پاس ڈیو نامی ایک بندی کی جانکاری تھی، وہ کسی مافیا سے جڑا ہوا تھا اور ہو سکتا ہے اس کے پاس اینٹیڈوٹ ہو کیونکہ وہ بھی اس سب میں شامل تھا۔ کیونکہ اب کلوئی کو ایڈمٹ کیا گیا تھا تو ڈین اور لوسیفر کو ہی کچھ کرنا تھا۔ دونوں ڈیو نامی اس بندے کے پاس جاتے ہیں، اس کی ایک آرٹ گیلری بھی تھی۔ اب یہاں ڈین وہ لوسیفر کو کہتا ہے کہ وہ اسے بات کرنے دے اور لوسیفر اس کے بیچ نہیں آئے گا۔ اب لوسیفر بھی وعدے کا پکا تھا تو وہ ڈین کو زبان دیتا ہے، مگر ہم جانتے ہیں ڈین لوسیفر کی طرح شاطر اور بولڈ نہیں ہے، وہ کام اور بگاڑ دیتا ہے۔ جب وہ ڈیو سے جھگڑا کرتا ہے دونوں کو پکڑ لیا جاتا ہے اور ڈیو کے بندے ڈین کو خوب پیٹتے ہیں۔ یہاں تک لوسیفر کو لگا شاید یہ ڈین کا کوئی پلان ہے، مگر جب وہ بتا دیتا ہے کہ وہ اپنے غصے پر کنٹرول نہیں کر پایا اور چیزیں اور بگڑ گئی، مطلب اب کنٹرول پھر سے لوسیفر کے پاس آیا۔ اب کلوئی آس پاس نہیں ہے تو لوسیفر کے پاس اپنی پاورز بھی تھی، وہ خود کو چھڑا لیتا ہے، غنڈوں کو وہیں ڈیر کر دیتا ہے، ڈین کو بھی چھڑا لیتا ہے کیونکہ کلوئی کو زہر دیا گیا ہے، اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، انہیں جو بھی کرنا ہے جلدی کرنا ہوگا۔ ڈیو بھی کافی ڈر جاتا ہے کیونکہ اس کے دونوں بندے وہاں بے ہوش پڑے تھے۔ لوسیفر اس سے اینٹیڈوٹ کے بارے میں پوچھتا ہے، ساتھ ہی وہ اسے ہپنوٹائز بھی کرتا ہے تاکہ وہ سچ سچ بتا سکے۔ خیر، جب لوسیفر ڈیو سے اس کی دلی خواہش معلوم کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ کوئی اس کی پینٹنگ لے، اسے اصلی پینٹر مانے، کیونکہ ڈیو خود ایک غنڈا تھا اور لوگ ڈر کی وجہ سے وہ پینٹنگز لیتے تھے۔ ویسے اس کی پینٹنگ تھی بھی گھٹیا۔ لوسیفر یہ جان کر اس کی یہ
ख्वाहिश भी पूरी कर देता है और उसकी एक पेंटिंग खरीद लेता है। बदले में डेव कुछ इंग्रेडिएंट की लिस्ट देता है, मगर उसमें अभी तक फॉर्मूला नहीं था। और वो सच भी था, क्योंकि असली फॉर्मूला सिर्फ प्रोफेसर के दिमाग में था और अब तो वो नहीं रहा। मतलब क्लोई सचमुच के खतरे में है। हॉस्पिटल में लूसीफर की माँ भी मिलने आती है और वो लूसीफर को एक बात कहती है, जिससे लूसीफर को एक आइडिया आता है। जब वो ये कहती है कि क्लोई के साथ जिस किसी ने भी ये काम किया वो हेल में सड़ रहा होगा। ये सुनकर लूसीफर को एक ख्याल आता है, जिसे वो बाकियों से भी शेयर करता है, जैसे अमेनेडिल, माजिकीन, शार्लेट और लिंडा। लूसीफर उन्हें समझाता है कि देखो, प्रोफेसर तो अब नहीं रहा, उसने सुसाइड भी किया तो वो कहीं और नहीं बल्कि हेल में गया है और मैं खुद वहां जाऊंगा, प्रोफेसर से फॉर्मूला लाऊंगा। वैसे भी वो हेल का राजा है। सब काफी हैरान थे, क्योंकि हेल जाना इतना भी आसान नहीं। लूसीफर कहता है कि मुझे मरना होगा तब मैं हेल जाऊंगा। वैसे भी तो उसे हेवन से निकाला गया है, कहीं और तो वो जा नहीं सकता। अब इस फैसले से शार्लेट यानी उनकी माँ बिल्कुल भी एग्री नहीं थी। वो अपने बच्चों को किसी खतरे में नहीं देख सकती थी। दूसरा ये कि अगर लूसीफर वापस से जिंदा नहीं हुआ तो वो हेल में हमेशा के लिए फंस जाएगा। तो शार्लेट वहाँ से चली जाती है, मगर अमेनेडिल, माजिकीन और लिंडा लूसीफर के साथ ही थे। लिंडा इसलिए क्योंकि वो एक डॉक्टर थी और इलेक्ट्रिक शॉक से वो लूसीफर को दोबारा जिंदा करेगी। वैसे लिंडा ये साफ साफ कह देती है कि मैं एक थेरापिस्ट हूँ, इस तरह की डॉक्टर नहीं। मगर लूसीफर को उस पर पूरा भरोसा था। वैसे भी लूसीफर की इन बातों पर कोई और बिलीव करने वाला भी नहीं था। तो अब मिशन ये है कि लिंडा और माजिकीन लूसीफर को मारेंगे इलेक्ट्रिक शॉक से। जब वो मरेगा सीधा हेल में जाएगा। अब रियल वर्ल्ड और हेल का टाइम सेम नहीं चलता, तो इसमें खतरा बहुत था। और लूसीफर एक ऐसे रूम में ये करने वाला था जिसके ठीक ऊपर क्लोई का रूम था। वो इसलिए क्योंकि जब क्लोई आसपास होती है तो लूसीफर मॉर्टल होता है, उसे मारना आसान होगा। इससे पहले लूसीफर ने अमेनेडिल को ये काम दिया था कि वो क्लोई को यहीं पर रख के चाहे कुछ भी हो जाए जब तक वो हेल से लौट नहीं आता। और खुद वो माजिकीन और क्लोई के पास जाता है, जहां वो अपने हाथों से ही खुद को मार देता है। और चंद सेकंड्स बाद लिंडा को उसे वापस लाना था। सीन शिफ्ट होता है हेल पर, जहां लूसीफर अब आ चुका था। अब यहाँ बंद दरवाजे थे और हर दरवाजे के पीछे एक एक इंसान कैद था जिसने दुनिया में सिन किया, उसे यहाँ सजा दी जाती। तो लूसीफर एक जगह में एंटर होता है और असल में ये हमारी दुनिया का रेप्लिका ही था। असल में ये प्रोफेसर की वो याद थी जब उसने कार एक्सीडेंट में अपने रिसर्च को बचाया था, मगर उस स्टूडेंट को नहीं। और बार बार ये सब रिपीट हो रहा था। लूसीफर उसके पास आता है। असल में प्रोफेसर को पता ही नहीं था कि वो हेल में है, मगर उसे अंदाजा था कि उसके साथ कुछ तो गलत हो रहा है। लूसीफर उसे सारी सच्चाई बता देता है और उससे फॉर्मूला मांगता है कि शायद इससे उसकी सजा थोड़ी कम हो जाए। वो इतना डरा हुआ था कि एकदम से ही वो फॉर्मूला दे देता है और प्रोफेसर उसी सपने में ट्रैप रहता है। इसके बाद लूसीफर उस दरवाजे से तो निकल आता है और फॉर्मूला को भी मेमोराइज करता है। और अब वो इंतजार कर रहा था जब लिंडा उसे दोबारा जिंदा करेगी, मगर इससे पहले कि वो ऐसा करती, लूसीफर का ध्यान एक और दरवाजे पर जाता है। जब वो उसके अंदर चला जाता है, ये उसका पेंट हाउस था और वहाँ वो अपने भाई यूरियल को देखता है। उसे देखकर वो एकदम से इमोशनल हो जाता है। वो हैरान था कि यूरियल हेल में कैसे आ गया। वो उससे बहुत माफी मांगता है, मगर इससे भी अजीब बात ये होती है कि लूसीफर के हाथ में बार बार द एंजल ऑफ डेथ का वो हथियार यानी वो ब्लेड आता और लूसीफर यूरियल को बार बार कत्ल कर रहा था। हालांकि लूसीफर ऐसा नहीं करना चाहता था, मगर ये लूसीफर के काबू में नहीं था। असल में वो भी हेल में सजा काटने लगा जैसे बाकी गुनहगार इंसान काट रहे थे। रियल वर्ल्ड में लिंडा और माजिकीन लूसीफर को जिंदा करने की कोशिश कर रहे थे, मगर कोई असर नहीं होने वाला था। माजिकीन समझ जाती है कि लूसीफर किसी कैद खाने में फंस चुका है और जब ऐसा होता है उस इंसान का दिमाग भी रियल वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हो जाता है। माजिकीन का कहना था कि किसी को उसके पीछे जाना होगा, उसे याद दिलाना होगा, मगर माजिकीन नहीं जा सकती थी क्योंकि डीमंस की सॉल नहीं होती। अगर वो मर गई तो बस किस्सा ही खत्म, वो वापस नहीं आ सकती। इस पर लिंडा कहती है कि मुझे भेजो, मगर माजिकीन इसके लिए भी तैयार नहीं थी क्योंकि क्या पता लिंडा हेल जाए ही ना बल्कि वो हेवन में चली जाए। यहाँ सभी क्लोई को बचाने में लगे थे, जैसे डैन और एला एक जगह खास केमिकल को चोरी करने जाते हैं। अब लूसीफर की माँ को पता चल जाता है तो वो लिंडा और माजिकीन को कहती है कि मैं हेल में लूसीफर को बचाने जाऊंगी। माजिकीन तो उसे एकदम से ही मार देती है। वहाँ हेल में लूसीफर बार बार अपने सिंस को दोहरा रहा था और आहिस्ता आहिस्ता वो हेल में ट्रैप
ट्रैप हो रहा था, मगर इतने में उसकी माँ वहाँ आती है और लूसीफर को याद दिलाती है कि असल में वो यहाँ क्लोई को बचाने आया है। यूरियल असली नहीं, ये बस उसकी परछाई है। वो लूसीफर को तो उसकी सजा से आजाद कर देती है, मगर खुद अपने बेटे को देखकर उस ट्रैप में फंस जाती है। लूसीफर अपनी माँ को हेल में ऐसे नहीं छोड़ सकता था, किसी तरह वो अपनी माँ को भी वहाँ से निकाल देता है और खुशकिस्मती से रियल वर्ल्ड में लिंडा उसे वापस से जिंदा होने में कामयाब भी हो जाती है, मगर इससे पहले भी उन्हें एक मसले का सामना करना पड़ा। डॉक्टर उसे दूसरी जगह शिफ्ट करवा रहे थे, मगर अमेनिडील ने अपना वादा पूरा किया और तब तक क्लोई को वहाँ से जाने नहीं दिया जब तक लूसीफर वहाँ खुद नहीं आता। तब तक वो गार्ड से लड़ता रहा। खैर आखिर में सब ठीक हो जाता है। हेल से लूसीफर फॉर्मूला के साथ वापस आ जाता है, क्लोई को बचा लिया जाता है और हाँ, उनकी मॉम भी वापस आ गई थी, मगर एंड में हमें दिखाया जाता है जहाँ लूसीफर अभी भी अपनी माँ से खुश नहीं था। असल में वो किसी से खुश नहीं था, क्योंकि हर कोई बस लूसीफर का दिल तोड़ने में लगा था। हेल में उसकी माँ ने भी अपने ख्याल उसके सामने रख दिए। वैसे भी जब से लूसीफर को पता चला है कि क्लोई भी गॉड के किसी प्लान का हिस्सा है, वो पहले जैसा नहीं रहा। अपनी माँ को और बाकी सबको छोड़कर वो वहाँ से चला जाता है। क्लोई जब ठीक हो जाती है, वो लूसीफर से मिलने उसके पेंट हाउस में आती है, मगर वहाँ लूसीफर नहीं था और ऐसा लग रहा था जैसे वो चला गया हो। आखिर वो कहाँ गया, इसका जवाब नेक्स्ट सीजन में हमें मिलेगा। चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दे। स्टोरी को लेकर अपनी राय जरूर दे और वीडियो भी लाइक कर दे।